Hello everyone, welcome to Crest Science Academy. In this video tutorial, we will going to discuss about another cell division that is meiosis. Okay, so आज हम meiosis के बारे में पढ़ेंगे. Meiosis cell division is also known as reductional division. इसको हम क्या कहते हैं? Reductional division भी कहते हैं. So why this division is known as reductional? तो हम आगे पढ़ेंगे, right? So in this meiosis, the process of meiosis is for the division of cell into half. Let's suppose if this is a parent cell, okay, this is a parent cell, and this parent cell is divided into two daughter cell. Okay, then again these daughter cells are divided into these cells. Okay? ये जो n नंबर ऑफ यहाँ पे क्रोमोसोम आपको शो हो रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, ये यहाँ से पेरेंट टू डॉटर सेल क्या हो रहे हैं? ये रिडक्ट हो रहे हैं, मतलब रिडक्शन हो रहा है इनका. ठीक है, तो यहाँ पर हाफ नंबर 1/4 और यू कैन सी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे एज पर दी पेरेंट. व्हाट डज इट मीन? सी यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस के प्रोडक्ट कैसे मिलते हैं हमें? इफ द पेरेंट, दिस वन इज अ पेरेंट हैव द क्रोमोसोम नंबर 2n, देन द डॉटर सेल्स आर same number of chromosome as parent. Okay, but what happened in the meiosis? Product of meiosis is 4 into n cells, n number of cells. What does it mean? 4 monoploid cells बनते हैं. If parent have the 2 number of chromosome, then the 4 number of daughter cells are formed. ठीक है, That's why this is known as reductional division. और ये जो हमारा meiosis है, this division is done in gametes. ये division किस में होता है? कौन सी cells में होता है? germ cells में. gametes भी कह सकते हो, like sperm. When the sperm fuses with एग. ओके, जब स्पर्म जो है फ्यूज होता है एग से, ओवम से, ओके, देन द डिवीजन इज नोन एज meiosis division. Okay, so apart from this, we all know that we have the 46 number of chromosome. ठीक है, 46 number of chromosome present होते हैं ह्यूमन बीइंग में, where 23 come from the sperm and 23 come from the female, that is ovum. Okay, when they form or when they like fuse each other to form a zygote. So the meiosis cell division कहाँ पे होगा हमारा? ये होगा हमारी germ cells पे. When the reproduction occur, then the meiosis cell division done. The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes. Two gametes कौन से हमारे पास? One is male gamete and another one is female gamete. ठीक है, so male and female gamete में जब fuse होगा, then each with a complete haploid set of chromosome. Each with a complete set of haploid means each with 23 क्रोमोसोम. अगर फीमेल में भी 23 क्रोमोसोम है एंड प्लस 23 क्रोमोसोम हमारे मेल में है, then only they fuse with each other to form 46 chromosomes. Okay, with the help of meiosis division. Okay, gametes are formed from specialized diploid cells. These specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half
result in the production of haploid daughter cell. This kind of division is known as meiosis. What does it mean? Initially गैमेट जो बनते हैं हमारे वो डिप्लॉयड होते हैं, ओके, देन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो ये हैप्लॉइड बनाते हैं in the daughter cell, then this division is known as meiosis. Okay, meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually producing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. Okay, we come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. So gametogenesis is the process where the gametes are fused. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या है? जब फीमेल और मेल गैमेट फ्यूज हो जाते हैं, दे फॉर्म जाइगोट, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट. एट लास्ट दे फॉर्म द हैप्लॉइड डॉटर सेल्स. ओके, देन द की फीचर ऑफ meiosis आर एज फॉलोज. की फीचर्स क्या है हमारे? meiosis इन्वॉल्व two sequential cycles of nuclear and cell division called meiosis first and meiosis second. अब हमारे पास हमने इनिशियली जो सेल डिवीजन पढ़ा था वो माइटोसिस था, राइट? सो माइटोसिस ऑकर इन ओनली वन फेज, एक ही फेज में होता है, वेयर डिफरेंट फेजेस आर देयर, लाइक प्रोफेज था हमारा, ठीक है, माइटोसिस में, देन मेटाफेज था, then anaphase and the last one is telophase. ठीक है, ये चार फेज हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस. सो मियोसिस ऑकर इन टू फेजेस. दो फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 होता है एक, और एक होता है मियोसिस सेकेंड. ओके, तो मियोसिस 1 is like the reductional division where the 2n is then divided into the haploid number of daughter cell. यहाँ पे haploid number of daughter cell ही मिलेंगे हमें diploid से. But the meiosis 2 is same as mitosis. तो meiosis 2 phase है हमारा, वो same है किसकी तरह? mitosis की तरह, where we get the same number of chromosomes. ठीक है, meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. ठीक है, after that meiosis involves pairing of homologous chromosome. यहाँ जो ये important बात है, यहाँ पर meiosis में क्या होता है? pairing of homologous chromosome, इनकी pairing होती है homologous chromosomes की, and रिकॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे. ठीक है, सो द मेजर पॉइंट ऑफ मियोसिस इज, एंड किनके बीच? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम होगा यहाँ, और रिकॉम्बिनेशन. नॉन सिस्टर क्रोमोसोम मतलब लेट सपोज दिस इज द क्रोमोसोम एंड दीज टू आर सिस्टर क्रोमेटिड्स. ठीक है, दीज टू आर सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे हम इसको. Same chromosome is there is, and these two are non-sister chromatids. ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 है सपोज, दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 2. तो इसका जो फर्स्ट, ये जो एक हम क्रोमेटिड लेंगे फर्स्ट का और सेकंड का दूसरा क्रोमेटिड लेंगे, देन दीज टू आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. ओके, सो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड जो प्रोसेस होगी, डिवीजन होता है, तो हमें लास्ट में क्या मिलता है? 4 नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल्स. सी ऐसे, फिर n also is divided into this, and this n is also divided. These are 4 number of haploid cells. ठीक है, so we have 2 phases, like 2 forms of phases. Number 1 is meiosis 1 and then meiosis 2. meiosis 1 में हमारे पास स्टेप्स हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. वेयर meiosis 2 में सेम है हमारा प्रोफेज सेकेंड, एंड यहाँ पे सेकेंड होगा, लेट मी करेक्ट, यहाँ सब सेकेंड होगा. ठीक है, सो दीज आर इन सेकेंड फेज, सेम एज
और ये जो हमारा मियोसिस सेकेंड है सेम एज माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस की तरह ही है, ठीक है। देन व्हाट वी हैव द प्रोफेज 1। अब हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1 में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं मियोसिस 1 का, ठीक है। दिस इज द फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का हम सबसे फर्स्ट फेज पढ़ रहे हैं। Prophase of the first meiotic division is typically longer. This prophase 1 is the longest phase. Longest phase क्यों कहेंगे हम इसको? Because they consist many like steps and many things. Okay, so this is the longer and more complex. This is longer and more complex when compared to the prophase of mitosis. जो हमने माइटोसिस की प्रोफेज पढ़ी थी, ठीक है। तो माइटोसिस वाली जो प्रोफेज है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं इस प्रोफेज को, इस फेजेस को, तो ये बहुत ही बड़ी होती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। देन इट हैज बीन फर्दर सब डिवाइडेड बिकॉज दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। फर्स्ट है हमारा लिप्टोटिन, देन जाइगोटिन, देन पेकाइटिन, देन डिप्लोटिन, देन डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो ये 5 फेजेस आर 5 फेजेस में फर्दर डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है हमारा डिप्लोटिन। ड्यूरिंग डिप्लोटिन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लिप्टोटिन। यहाँ पर हमें जो लिप्टोटिन स्टेज है इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर लाइट माइक्रोस्कोप है तो उसमें हम क्लियरली ये स्टेज जो है देख सकते हैं, ठीक है। एंड द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटिन। लेप्टोटिन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम के जो कंपैक्शन है, कंपैक्शन में अगर वो कंडेंस फॉर्म में है तो उसमें हम थ्रू आउट दी कंटिन्यू लेप्टोटिन में हम देख सकते हैं। दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। अब इसके बाद जो है हमारा सेकेंड फेज आता है जाइगोटिन। तो यहाँ पर कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले है लेप्टोटिन, देखो यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद से हमारे पास जाइगोटिन। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज द एसोसिएशन ऑफ साइनेप्सिस। यहाँ पर आपको सेकेंड स्टेप दिख रहा होगा, ये है फर्स्ट वन, दिस वन इज द फर्स्ट वन, दिस वन इज द सेकेंड वन, दैट इज जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोसोम जो है स्टार्ट पेयरिंग विथ ईच अदर। यहाँ पे एक दूसरे से ये पेयर करना स्टार्ट हो जाएंगे और उस एसोसिएशन को और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग हो रही है और एक है हमारे पास प्रोसेस साइनेप्सिस प्रोसेस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो दीज आर दी होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कब बनते हैं, इन दी जाइगोटिन फेज। Electron micrograph of these stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by formation of complex structure known as synaptonemal complex, ठीक है। तो this complex is also important। ये complex कहाँ बनता है, when the synapses of the chromosome indicate the homologous chromosome, okay। After this complex, the complex formed by a pair of synaptic homologous chromosome is called a bivalent or a tetrad। अब देखो इसको bivalent क्यों कहा गया है, this is like this, ठीक है। ये ऐसे करके homologous इनकी पेयरिंग होती है, इनकी homologous पेयरिंग ऐसे होगी, ठीक है। So this is known as bivalent and tetrad also। इसको हम टेट्राड भी कहते हैं और बाइवेलेंट भी कहेंगे इसको हम, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, देन वी हैव द थर्ड स्टेज। द 2 stages ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट एट पेकाइटिन। अब थर्ड वन है हमारा पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या हो रहा है, During this stage, 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrad। अब हमारे जो bivalents थे like this one and this one, right? और एक हमारा ये था homologous chromosome। तो ये हमारे bivalent जो शो हो रहे थे ये क्या हो जाएंगे, क्लियरली क्या होंगे,
इंडिविजुअल हमें शो होंगे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। सो द 4 chromatid 1 2 3 4 individuals are chromatin, right? So 4 chromatid of bivalent chromosome become distinct and clearly appear as tetrad. These are tetrads. ये कौन सी फेज में होगा? पैकाइटिन में हमें ऐसे दिखेंगे. This stage is characterized by the appearance of combination nodules, the site at which the crossing over occurs between non-sister chromatid. अब यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब दिस वन इज द क्रोमेटिड एंड दिस वन, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 का एंड क्रोमोसोम नंबर 2 में जो ये क्रोमेटिड है एक, और दिस वन इज द सेकंड क्रोमेटिड, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है, ऑफ द होमोलगस क्रोमोसोम। द क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? पैकाइटिन में हो रही है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर is also an important point. So where it happen in पैकाइटिन is the exchange of genetic material between two homologous chromosome. अब exchange of genetic material क्यों हो रहा है? Because we have two genetic material. एक है हमारे पास फादर का DNA, ठीक है, जो कहाँ से आया है? स्पर्म से आया है, राइट। और एक है हमारे पास मदर का DNA, मदर का DNA हमारे पास ओवम से आया है, ठीक है। तो दीज टू जेनेटिक मटेरियल्स आर, इनका क्या होगा? एक्सचेंज ओवर होगा, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस. दिस वन इज द एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, जिसको हम, जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज. रिकॉम्बिनेज, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको लाइक रिमेंबर होने चाहिए. रिकॉम्बिनेज इज द एंजाइम, रिकॉम्बिनेज इज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल इन क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच हो रहा है? बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर. और ये कौन से स्टेज में हो रहा है? पैकाइटिन स्टेज में, ठीक है. Crossing over leads to the recombination of genetic material on two chromosomes. Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकाइटिन, leaving the chromosome linked to the sites of crossing. अभी जो recombination है, ठीक है, ये recombination हो रहा है जो homologous chromosome में, ठीक है. तो वो complete कैसे होगा? जैसे ही पैकाइटिन स्टेज एंड हो जाएगी, this process, this recombination is completed. Then we have the fourth stage, that is diplotin. The beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptonemal complex. synaptonemal हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पैकाइटिन, हमने जाइगोटीन में पढ़ा था, राइट. synaptonemal जाइगोटीन में पढ़ा था. That's why this synaptonemal complex जो है, or the tendency of the recombinant homologous chromosome of the bivalent to separate from each other except at the site of crossover. The X shape is chiasmata. तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही हैं? डिप्लोटिन में हमारे पास X शेप में क्या बन रहा है? chiasmata. इसको हम कहते हैं chiasmata, ठीक है. तो chiasmata इज दी लाइक फीचर, और यू कैन से द स्टेज जो कहाँ प्रेजेंट हो रही है, जो डिप्लोटिन में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है. इन oocyte ऑफ द सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स. जो डिप्लोटिन स्टेज है ये 1 महीने तक भी रहती है या सालों तक भी रहती है कुछ वर्टिब्रेट्स में, ठीक है. फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक फेज 1, और जो फाइनल स्टेज है प्रोफेज 1 की, वो कौन सी है? डाइकाइनेसिस. दैट वन इज द 5th वन. दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata. मतलब कि टर्मिनलाइजेशन मतलब कि इसका टर्मिनल एंड आ चुका है, इसका chiasmata का टर्मिनल एंड आ चुका है. ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड. यहाँ पर क्या हो जाएगा? फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएगा क्रोमोसोम,
and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for the separation. अब यहाँ पर हमारे पास स्पिंडल meiotic spindles बन जाएंगे for the separation. ठीक है. By the end of dikinesis, the nucleolus disappears, the nuclear membrane also break down. Dikinesis represent the transition to metaphase. अब हमारा जो प्रोफेज था वो क्या हो गया, प्रोफेज 1 complete, then it move to the metaphase 1. मेटाफेज 1. ठीक है. तो हमने प्रोफेज में कौन सी स्टेजेस पढ़ ली हमने. सबसे पहले हमने पढ़ी थी कौन सी, लिप्टोटिन. ठीक है. देन जाइगोटिन, सेकेंड वन, देन पेकाइटिन, देन डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस. ठीक है. सो लिप्टोटिन में हमारे पास जो चीजें थी वो वेन एवर दी इट्स लाइक कंडेंस फॉर्म, एक आप कह सकते हो एक कंडेंस फॉर्म में जो हमारे पास क्रोमोसोम था, इट देन कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम. अब हमारे पास जो जाइगोटिन है यहाँ पर हमारे पास क्या बना था, साइनेप्सिस. जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे हमारे उसमें कन्वर्ट हो रहे थे. ठीक है. देन पेकाइटिन में हमारे पास हमने क्या बनाया था, यहाँ पर हो रही थी क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. एंड डिप्लोटिन में चार्जमाटा. ठीक है. देन वी हैव द डाइकाइनेसिस. डाइकाइनेसिस में हमारे पास है टर्मिनलाइजेशन, यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है और यू कैन से एग्जिट ऑफ चार्जमाटा. ठीक है. सो दिस इज द stages of prophase 1. then move to the metaphase 1. अब metaphase 1 में क्या हो रहा है, the bivalent chromosomes align on the equatorial plate. अब यहाँ पे same as there, यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जैसे मैंने मेटाफेज आपको बताया था इनिशियली, तो यहाँ पे एक पोल है हमारे पास. ठीक है. जो हमने माइटोसिस में पढ़ा था, सेम स्पिंडल फाइबर्स. देन इक्वेटोरियल पोल में सारे हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं. इक्वेटोरियल प्लेट. देन दी बाइवेलेंट, यहाँ पे पर बाइवेलेंट क्रोमोसोम आर अलाइन. सिंगल क्रोमेटिड अलाइन नहीं होते, बाइवेलेंट क्रोमेटो. The microtubules from the opposite poles of the spindle attach to the kinetochore of the homologous. यहाँ पे जो हमारे पास है ये kinetochore, these are attached with the spindle fibers, that is microtubules, and we have the alpha tubulin and beta tubulin, right? Then move to the anaphase 1. The homologous chromosomes separate while the sister chromatin remain associated to their centromere. जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अब वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. ठीक है. होमोलोगस क्रोमोसोम विल सेपरेट एंड देन इट मूव टू दी टेलोफेज 1. द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियोलस रीअपियर. दोबारा से बनने लगेंगे, रिपेयर होने लगेंगे. एंड द साइटोकाइनेसिस फॉलोज. साइटोकाइनेसिस इज द प्रोसेस वेयर द सेल डिवाइड्स फाइनली. तो यहाँ पे सेल जो है अगेन इट divides, and this is called the dyad of cell. Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach to the externally extended of the interphase nucleus. The stage between the two mitotic division is called interkinesis. अब हमने meiotic फर्स्ट स्टेज पढ़ ली. ठीक है. अब है नेक्स्ट मियोसिस. मियोटिक कौन सी हमारी, सेकेंड. बट द स्टेज बिटवीन मियोटिक 1 एंड मियोटिक 2 इज इंटरकाइनेसिस. ठीक है. ये जो इंटरकाइनेसिस है ये बहुत ही शॉर्ट स्टेज होती है, बहुत ही छोटी. देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. यहाँ कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, बट देयर इज अ स्टेज. Interkinesis is followed by the prophase 2 as much as simpler
प्रोसेस देन प्रोफेज 1। यहाँ पे क्या होता है, ये इंटरकाइनेसिस, उसके बाद इंटरकाइनेसिस के बाद जस्ट हमारा आ जाता है प्रोफेज 2। और प्रोफेज 2 जो है हमारा, जो प्रोफेज 1 था उससे बहुत ही सिंपल होता है, बिकॉज प्रोफेज 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, लाइक लिप्टोटीन, डिप्लोटीन, पेकाइटिन, देन डाइकाइनेसिस, राइट, जाइगोटीन, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने। अब हमारे पास है मियोसिस 2। अब हमने मियोसिस 1 में पढ़ लिया था, तो मियोसिस 1 में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, वी हैव दी 2n, right, when they divided into the daughter cell, then they undergo the reductional division। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, reductional division हो रहा है, तो half number of chromosomes are, or you can say 1/4 number of chromosomes are formed, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, मियोसिस 2 इज सेम एज दी माइटोसिस। तो माइटोसिस में हमने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। वैसे ही प्रोफेज 2 में सबसे पहला है हमारा मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर दी साइटोकाइनेसिस। जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ रहा है साइटोकाइनेसिस किसका, हमारा लाइक फर्स्ट जो मियोसिस है उसका। Usually before the chromosome have fully elongated. In contrast to meiosis 1, meiosis 2 resembles a normal mitosis. The nuclear membrane disappear by the end of prophase 2 and the chromosome become compact. Same as the माइटोसिस का जो हमारा प्रोसेस था, इनिशियली हमारा प्रोफेज था, ठीक है, प्रोफेज के बाद वो सारे ऑपोजिट पोल्स में आ जाते थे, देन इट अंडरगोज मेटाफेज, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या हो रहा था हमारा, एट दिस स्टेज क्रोमोसोम्स आर अलाइंग इन द इक्वेटर, सेम। अब क्रोमोसोम यहाँ पे स्पिंडल में यहाँ पे जैसे अलाइंग हो रहे हैं, ये काइनेटोकोर है हमारा, ठीक है, यहाँ अलाइंग हो रहे हैं क्रोमोसोम। हमने यहाँ पे मेटाफेज में भी पढ़ा था, मेटाफेज कौन सी, माइटोसिस की। मेटाफेज 2 में सेम एज माइटोसिस की मेटाफेज, और मेटाफेज प्लेट में क्या हो रहे हैं, ये अलाइंग हो रहे हैं, ठीक है। एनाफेज 2 में क्या हो रहा है, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम allowing them to move towards the opposite poles of the shortening of microtubules called। अब सेम एज हेयर एनाफेज जो हमने माइटोसिस का पढ़ा था वैसा ही एनाफेज 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को स्प्लिट आउट करेंगे, क्रोमेटिड जो है वो स्प्लिट आउट हो जाएंगे, ठीक है, एंड ऑपोजिट पोल्स में आ जाएंगे। And the last one is telophase, meiosis and with telophase 2, in which two groups of chromosome once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad of cells and 4 haploid daughter cell. But in इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास मियोसिस में हमने क्या देखा था कि 4 haploid cells बन रहे थे, ठीक है, 4 haploid cells are formed, okay। So this meiosis 2 is same as the mitosis process। So this is all about meiosis 1 and meiosis 2। Now move to the significance of meiosis cell division। अब इसका significance क्या है, meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generations in sexually reproducing organism, even though the process paradoxically result in reduction of chromosome number by half। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर जब क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट है कोई भी स्पीसीज में, ठीक है, तो वो क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे हाफ हो जा रहे हैं, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द population of organism from one generation to next generation। What does it mean? It mean if like this is a male parent, okay, this is a male parent and this one is the female parent, if they give birth to their like 2 offsprings, अगर इन्होंने 2 offspring को birth दिया है, one is female and number second one is male, ठीक है।
ये हमारा they are the offsprings. So these two siblings are not identical. Are not identical. They are different in लाइक जो उनकी फीचर्स होंगे, जो भी लाइक उसके क्रोमोजोम नंबर लाइक सेम, बट जो उनके फीचर्स होंगे वो पूरे के पूरे सिबलिंग्स के डिफरेंट होते हैं. हाउ इट इज डिफरेंट? बिकॉज ऑफ द वेरिएशन. Variation is very important in the process of evolution, and it the population, और ये क्या करती है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी कॉज करती है मियोसिस. ठीक है, so this is the small thing about the meiosis. Step of meiosis, यहाँ देखिए, फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस सेपरेट्स होमोलोगस पेयर. जो फर्स्ट डिवीजन है मियोसिस का, वो क्या कर रहा था, होमोलोगस पेयर को सेपरेट कर रहा था, 2n to 1n. ठीक है, बट यहाँ पर सेकेंड डिवीजन जो है हमारा, वो सेपरेट कर रहा है सिस्टर क्रोमेटिड्स को. ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे 46 क्रोमोजोम हैं, देन यहाँ 23 क्रोमोजोम विल वी गेट टू ईच डॉटर सेल. ठीक है, तो इफ अ पेरेंट हैव दी 46, अब ये 46 क्रोमोजोम कहाँ से आया, 23 मेल से आया, 23 फीमेल से. ठीक है, देन ये डिवाइडेड इनटू 23 and 23, and this 23 is then each offspring will get 23 chromosome number, chromosomes. ठीक है, सो मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट में अगर हमारे पास 23 20 है, then when it fuses together, then it causes 46 chromosome. Okay, this is all about meiosis division. Okay, if you like the video, subscribe our channel and do like our and share our videos as much as possible. Thank you very much. Have a nice day.